ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ के आपने सुना रहेगा कि कुर्ला अंधेरी रोड पे एक जरीमरी करके एरिया है जो मुंबई एयरपोर्ट के बैक साइड में गिरता है और काफ़ी स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के दूध की लाइन डालना, उसके बाद में फिर पेपर की लाइन डालना, फूल वगैरह का बिजनेस करती थी, फूल लेके आती थी, उसके गजरे और ये सब बनाने, और तो उसकी टोकरी लेके मैं अपने ही एरिया में घूमता था फूल बेचते हुए वगैरह। One of the prominent things he has talked about is Make in India. उनका काफी जोर रहा है कि इंडिया में आके आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देते हैं कि आप आइए, सेमीकंडक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एप्पल के फोन्स यहाँ पे आप बनाइए. And it's ready on a plate because there's thousands of products being imported and it's just copy and do it, just get that. And then later on innovation will come, ecosystems will come. And always remember, a factory is like a microcosm of a city. You start a factory, then you have a little canteen outside, you have transporters coming in and out. You need little, low roads get developed. So that's how it blossomed because I've seen it in China and it's time for India now. कि मेक इन इंडिया का नारा देने के कारण इतनी सारी चीज़ें हो गई है, इतने रोज़गार उपलब्ध हो गए हैं, कोई माने ना माने, लेकिन मुझे पता है कि जब इस मेक इन इंडिया के कारण ही हम इस क्षेत्र में आए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आए, और आज जब हमने चालू किया था तो मेरे पास में हार्डली 10 या 15 वर्कर थे। आज मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ खुद को, और अच्छा लगता है, मुझे प्राउड फील होता है कि आज मेरे पास में 125 के ऊपर वर्कर काम कर रहे हैं। जीएसटी तो उसके अगेंस्ट तो कांग्रेस ने काफी, ऑपोजिशन पार्टीज ने काफी वो चलाया है, कैंपेन चलाया है, गब्बर सिंह टैक्स और ये वो। लेकिन मेरा अनुभव तो इसे ये कहता है कि सर इसके जैसा सरल और ये कोई है ही नहीं उपाय। हाउ डू यू सी चाइना वर्सेस इंडिया इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? मोदी जी को बहुत ही आभारी रहूँगा। इंडस्ट्री के लिए जो काम कर रहे हैं वो इससे और अच्छा उनसे होए, और वो भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र दे ताकि हमारा देश और प्रगतिशील पथ पर चले, और ये उनके बगैर मुमकिन ही नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। हेलो एंड वेलकम टू द पैम्फलेट पॉडकास्ट। मैं हूँ निर्वा मेहता। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे प्रकाश जी, राजन भाई। हम शुरू करें उसके पहले आप प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। प्रकाश जी, आपसे शुरू करते हैं। Sure. Hi, Nirvaji. Firstly, thank you for giving us this opportunity on coming on this podcast. Really appreciate it. It's the first podcast, so I'm glad. Yeah, we're excited. It'll be a nice one. So, I'm actually basically a Sindhi. Grandparents were in Sindh, had to move from at the time of partition, and after that, all the brothers, my father and their 5 brothers, they were spread one by one all around the world. So we had Hong Kong, Singapore, Taiwan, Nigeria, Spain. Okay. So I was brought up in Korea for about 15 years, in South Korea, of course, not the North. 안녕하세요. So I brought up there, and then came back to Hong Kong because just wanted to start, because the education wasn't that great in Korea at that time. So I got started there, and in high school I basically dropped out. I just thought I wanted to get myself into business somehow because I guess I wasn't the smartest one in the lot. So got into that, joined a trading company, my uncle's trading company, and where we did general trading. Basically, I've sold everything from women's lingerie to manhole covers to food stuff, garlic. We basically wherever we could make some money, the typical Sindhi trade, right? But then I found my passion in electronics. So I started to decide, okay, I don't want to be a jack of all trades. What do you call that? Jack of all trades, master of none. Yeah. So I got into electronics, started with these simple games, little brick games, trading in that. And as the game went on forward, I wanted to have more control. And I always like learning, and manufacturing has been a passion to me. I want to be in control of whatever I'm doing. So at that time, we started some manufacturing in China. We started with lighting products. And at that time, the India market had exploded with imports, it was a big thing. So India was one of our main markets, doing all of the Middle East, US, UK. So I had a lot of manufacturing and trading experience from China. It's been about over 35 years. I live in Hong Kong. And basically, I've seen China grow from zero to where it is now. Right. I've seen that growth. I've been a part of it. I've been in the middle of the whole thing. And with all my buyers and all that, they also started to have an interest about starting 10 years ago at some Indian products, air coolers, ceiling fans. There's certain products where India can compete with China, but they've always had a hesitance because of bad experiences. No proper communication,
people running away with their deposits, with their money. And so that general whole kind of reputation of India wasn't great out there. But I knew them really well, so I was at Connect. So again, started trading from India. We started with some air coolers, ceiling fans to Egypt, Dubai, Saudi. It went really well. And then they started to ask for going into their own private labels, which Indians don't want to do. Everybody wants their own brand. There's no such thing about private labels. And then by really good luck, by his grace, I met Rajan. So again, a very long story. Maybe he can get into that. आप बताइए, आप यहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ से आए, कैसे आ गए? बेसिकली मेरा नाम है राजेंद्र गंगाराम भोसले और मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ। अगर बताना चाहूँगा तो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट करते हुए बताऊँगा कि मैं ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ के आपने सुना रहेगा कि कुर्ला अंधेरी रोड पे एक जरीमरी करके एरिया है जो मुंबई एयरपोर्ट के बैक साइड में गिरता है और काफ़ी स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी। तो वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है और 10 बाई 10 रूम के अंदर में हम लोग 8 जन रहते थे फैमिली। बहुत ही कम उम्र में जब मैं स्कूल के इसमें था तब मेरे डैडी ऑफ हो गए थे और बड़े भाई साहब और मेरे में कुछ 18 साल का गैप है। तो जस्ट लाइक अ फादर ही थे, मगर वो भी मिल मज़दूर थे और थोड़े दिनों में बाद मिल भी बंद हो गई थी और वहाँ से वो सबको हमें शिफ्ट करना पड़ा और मैं स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया। सबको शिफ्ट किया हमारे नेटिव में क्योंकि जीना उतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। सो मैंने वहीं पे अपना ज़िंदगी चालू कर दी। तो मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के दूध की लाइन डालना, उसके बाद में फिर पेपर की लाइन डालना। फिर जब मम्मी और ये सब यहाँ पे थे, जब भाई की मिल नहीं गई थी, तो भाई को सपोर्ट करने के लिए मम्मी फूल वगैरह का बिज़नेस करती थी, फूल लेके आती थी, उसके गजरे और ये सब बनाने। और तो उसकी टोकरी लेके मैं अपने ही एरिया में घूमता था वो फूल बेचते हुए वगैरह, और उसके बाद में जाके स्कूलिंग करता था और शाम को फिर से एक कंपाउंडर बन के काम करता था, जहाँ से जब उस वक्त दवाइयाँ बाहर से नहीं लिखी जाती थी तो डॉक्टर लोगों के उसी के अंदर में दवाइयाँ दी जाती थी और उसके लिए उनको एक कंपाउंडर लगता था। तो शाम को फिर 2-3 घंटे का काम वो होता था, फिर थोड़ी अपनी पढ़ाई। तो ऐसे करते करते ये सारे वहाँ से जर्नी मेरी चालू हुई थी। एंड बहुत ही कम एज में ही मैंने एज अ कंपनियाँ जो छोटी छोटी होती है उसके अंदर में स्वीपर का काम चालू कर दिया। तो वहाँ से जर्नी चालू की और स्कूलिंग न होते हुए भी मेरा एक ये था कि स्कूल का जो पढ़ाई है वो आपको आड़े नहीं आ सकती आपके। मगर अगर वो कोई आज की जनरेशन सोचती है कि हमारे पास डिग्रियाँ है, ये है, तो ही हम ये बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए और आपको आपकी मजबूरी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उस मजबूरी को आपकी वो सबके सामने गाना गाते घूमते हैं कि भाई मेरा ये है, मेरे को फादर नहीं, मेरे को वो नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो अपने अपॉर्चुनिटी को मतलब मजबूरी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। सो मेरा एक सबको हाथ जोड़ के विनती है इन सभी यंगस्टर्स को कि आप, और एक दूसरा दुख की बात ये लग रही है कि कोई भी जो है वो 9 से 6 की नौकरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उनको आईटी की जॉब चाहिए, उनको बैंकिंग की जॉब चाहिए, उनको बाकी सारी चीज़ों के, जिसमें कि भाई, और फैमिली भी उनको वही सपोर्ट करती है कि भाई तू करके करेगा क्या आगे बढ़ के, हाँ कोई अच्छा सा पढ़ाई लिखाई कर ले और देख ले कि 9 से 6 की जॉब लिखे। बुरा नहीं है, 9 से 6 की जॉब बुरी नहीं है, लेकिन 9 से 6 की जॉब कब तक रहेगी? कोई नौकरियाँ क्रिएट करने वाला ही नहीं बनेगा, इंटरप्रेन्योर ही नहीं बनेंगे, तो ये नौकरियाँ आएगी कहाँ से? रोज़गार पैदा कैसे होंगे और 9 से 6 के जॉब कहाँ से फिर आपके हाथ में आएंगे? तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने आज की तारीख में इंटरप्रेन्योर बनने की तौर पे काम करना चाहिए। देखिए, जैसे कि प्रकाश जी ने कहा कि भाई चाइना कहाँ से कहाँ पहुँचा, तो क्योंकि आज की तारीख में जब मैं इनके पास साथ में बहुत सारे एग्जीबिशन अटेंड करता हूँ या मैं वहाँ घूमता हूँ, तब समझ में आता है कि वहाँ हर एक बच्चा कुछ ना कुछ करने के होड़ में लगा हुआ है। किसी का भी 9 से 6 के जॉब के पीछे का नहीं है। एवरीबडी वांट्स कि हमारी कोई तो छोटा सा भी हो लेकिन बिजनेस हो।
हमारे आपकी खुद की कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जिससे कि हम बिजनेस क्रिएट कर सके या रोज़गार क्रिएट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे दूर तक लेके जाए। हमारे यहाँ से उल्टा है। हमारे यहाँ पे पहले तो घर वाले पहले करने नहीं देते, पुश नहीं करते अपने बच्चों की कि नहीं, क्योंकि उन्होंने भी उनकी लाइफ वैसे ही काटी और वो चाहते कि हमारे बच्चे की भी लाइफ सेफ हो। मैंने एक दो चार बार, Exactly. क्योंकि मैंने एक दो जन मेरे पास में आते हैं मार्केटिंग के लिए गए, तब मैं उनको कुछ पूछता हूँ कि भाई कैसे वगैरह, तो बोले उनको मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप करो, अगर कुछ चाहिए तो मैं बैठा हूँ, अगर हो सके जितना मेरे से तो मैं कर दूंगा। मतलब हाँ, फैमिली हमें मना कर देती है। फैमिली वाले बोलते हैं कि ये करके तू करेगा क्या? Engineer doctor बस वही है सर। तो या तो तू आईटी कर रहा है तो आईटी कर ले, या तो कोई ये कर, तुम 5:30 6 बजे तो घर पे आ जाना चाहिए। नहीं, बट सो ये आप जो कह रहे हैं कि शून्य में से सर्जन किया है आपने, ठीक है, तो मेरा ये अगला सवाल ये है कि जैसे कि जब से 2014 से पीएम मोदी की जब सरकार है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग्स ही हैज टॉक्ड अबाउट इज मेक इन इंडिया। उनका काफी जोर रहा है कि इंडिया में आके आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देते हैं कि आप आइए, सेमीकंडक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एप्पल के फोन्स यहाँ पे आप बनाइए, गाड़ियाँ यहाँ बनाइए। गुजरात में पूरा इट्स अ हब ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ से काफी कुछ होता है। सो ही हैज बीन टॉकिंग अबाउट कि आप भारत में आइए, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कीजिए, हम आपको सुविधाएं देंगे। तो एज फर्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरर्स सो टू से, आपको ये किस तरह से लगता है कि डू यू थिंक कि द मेक इन इंडिया कॉल वाज परहैप्स वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स की लेट्स ट्राई? आपको क्या वो लगा कि हमें भारत में आके कर, क्योंकि आपका चल रहा था, राइट, यू वर लिविंग अ गुड लाइफ, आपका सब सेट था। मैन्युफैक्चरिंग करना, पैसे लगाना रिस्क है, और जनरली ह्यूमंस कंजर्वेटिव होते हैं, रिस्क एवर्स होते हैं। What made you feel, was it at one point कि मेक इन इंडिया कॉल किया है? तो क्योंकि अगेन इंडिया इज नोन फॉर ब्यूरोक्रेसी, द इनफेमस ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म होता है, तो what made you choose this path? So absolutely, you're absolutely right. You know, if it was about 10, 15 years ago, I really wouldn't think about it. We started about 6 years ago. But I could see from the outside, even being in Hong Kong, that changes were happening. The whole made in India, it was very well marketed. It was all happening. And even when I did decide to take the chance, my family, my friends, everybody told me, you're completely nuts. You're stupid. You're going to lose all your money. Everybody who's gone in India has lost their money. That was the whole kind of aura around it. But, you know, I just had faith that we literally met for 1 hour and we both decided, okay, we're going to do this. It was literally like that. We hardly knew each other, but we just tuned. There was something about us. We were in a coffee shop and we tuned. Everybody was against it, but I said, okay, let me try. I'm really glad I did. It's probably one of the best decisions I made. And as I said, like, it's not as bad as what the whole outside thing is. It's getting better by the day. I'm not delusional about this. There's a lot of problems still that need to be ironed out, but there's a lot of pluses as well. And it's the biggest opportunity. We're sitting in the biggest market in the world. People say Africa is the final frontier. I disagree. It's India. India is the biggest market. There's money everywhere. There's so much things that are getting imported. And the thing that's happening right now is the import controls. The Modi ji's government has bring in the BIS and different import controls, which for toys, for home appliances, there's literally millions of products that can be now Indianized, right? As a businessman, even I don't blame anybody else in the past for importing, because it was the easiest way, it was the cheapest way. There's no magajmari, nothing. Everything's very clear, right? But when you're forced to do it, then you start, right? It's like in Japan after the World War, after being bombed, they were forced into manufacturing. China, in a way, also, you know, there was so much population, they needed that employment. They were forced into it. We were saved by IT, but I think there's different days for ITs coming with AI. And no matter anywhere in the world, manufacturing is a backbone of the economy. Correct. You see anywhere where it's gone down, the country has gone down. Where it's gone up, it's gone up. So there's no choice. We have to manufacture, and it's ready on a plate because there's thousands of products being imported, and it's just copy and do it. Just get that, and then later on, innovation will come, ecosystems will come, and always remember, a factory is like a microcosm of a city. You start a factory,
then you have a little canteen outside, you have transporters coming in and out, you need little, you know, Roads get shop, developed. low roads get Correct, developed. correct. So that's how it blossomed, because I've seen it in China and it's time for India now. राइट करेक्ट आई एग्री इनफैक्ट राजन जी आप बताइए आप कंसिडरिंग कि आप सारे ऑपरेशंस का ज्यादातर आप वो करते हैं तीन चीजें जो आप डिफिकल्टीज फेस करते हैं और तीन चीजें जो आपको लगता है कि चीजें काफी इम्प्रूव हुई हैं पिछले 10, 12, 15 सालों में तो पहले तीन चीजें दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड देन 3 थिंग्स दैट आर बेटर अगर तीन चीज़ें अगर आप बोलेंगे कि इम्प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जैसे कि प्रकाश जी ने कहा कि हम इंपोर्ट के लिए इन्होंने हमें BIS मैंडेटरी कर दिया है मगर मजबूरी ये है कि आज जो BIS का स्टाफ है वो बहुत अंडरस्टाफ्ड है मतलब उनको जितने चाहिए उतना उनके पास में मैन पावर की कमी है मैन पावर है नहीं सो आज इतने सारे प्रोडक्ट के ऊपर हम BIS का मैंडेटरी करने जा रहे हैं मतलब हो चुका है ऑलमोस्ट तो हमेशा उनको एक्सटेंड करना पड़ रहा है क्योंकि उसके लिए वो खुद प्रिपेयर नहीं है अभी और जो है जिनके ऊपर है उनके पास जैसे मुझे आज अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्राइटेरिया उनका कोई फिक्स नहीं कि कितने दिन में वो लोग हमारे पास में आएंगे कितने दिन में हमें लाइसेंस मिलेगा कितने दिन में हम उसे करेंगे या कुछ कारणवश अगर हमारा लाइसेंस अगर स्टॉप मार्किंग है तो वो उसको कितने दिन में वो वापस उसको रिवोक कर पाएंगे ठीक है तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि अगर एक स्टॉप मार्किंग है तो आदमी बिजनेस कैसे करे वो अगर उसको डोमेस्टिक कर रहा है तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि विदाउट आपके CML नंबर जो होता है उनका लाइसेंस है वो अगर आपको प्रिंट करना है तो परमिशन उनकी चाहिए तो फिर परमिशन जब मेरे अंडर स्टॉप मार्किंग रिवोक ही नहीं हो पा रही तो मैं 3 महीने के लिए अगर वो लोग आए नहीं मेरे पास में तो 3 महीने क्योंकि ड्यू टू उनके अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जानबूझ के कोई नहीं करता लेकिन उन प्रॉब्लमों को उनको देखना पड़ेगा हाँ बॉटलनेक्स उनको देखने पड़ेंगे और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा सेकेंडली मेक इन इंडिया का नारा बहुत अच्छी तरह दिया गया और उसके ऊपर बहुत जन अच्छे तरह काम भी कर रहे हैं करना भी चाह रहे हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट है वो आज वो उस कोने तक नहीं पहुंची हुई है जहाँ की आपकी फैक्ट्री है वहाँ के आजू बाजू के अगर रोड देखेंगे तो वहाँ आपके गाड़ियाँ आ नहीं सकती या वहाँ पे वर्कर जो आना है तो वर्कर के लिए आपको या तो स्पेशल बसेस रखो जहाँ पे आज की तारीख में मेरी फैक्ट्री है वहाँ से मेरा रोड है वो 3 किलोमीटर दूर है तो लेडीज़ अगर वर्कर आना है तो उसको सेफ्टी नहीं है वो वहाँ से 3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है और शाम को उसको चल के वहाँ पे जाना पड़ रहा है तो उसके लिए चलो वो भी कर लेंगे वो लोग मगर उसको रोड पाथ जो है वो तो एटलीस्ट जो बनना चाहिए वो खड्डे गड्ढे पानी भरा पड़ा है बरसात के दिनों में फिर उसको तैर के या तो पार करके जाओ वो वाले सिनारियो चल रहा है तो मेरे हिसाब से उनको जब इंडस्ट्री डालने का आप कनेक्टिविटी हाँ या और थर्ड है कि ट्रांसपोर्टेशन का कैसा है कि कोई भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन हर एक एरिया में अपना अपना यूनियन बाजी करके बैठे हुए कि यहाँ से अगर मुंबई जाना है तो हमारी गाड़ी आ जाएगी मुंबई से यहाँ पे आई हुई गाड़ियाँ वो नहीं कर पाएंगी क्योंकि जो गाड़ी मुंबई से आई वही तो सस्ती लेके जाएगी हाँ तो इसका फाइनल इम्पैक्ट किसके ऊपर जाता है प्रोडक्ट के ऊपर जाता है और वो प्रोडक्ट आखिर में लेने वाला कौन है आप आम जनता लेने वाली है एक मैन्युफैक्चरर तो इतना सारा प्रोडक्ट खुद कंज्यूम नहीं कर पाएगा या कोई है तो जो भी हो पैसे वाला हो मिडल मैन हो या फिर आपका लोअर एंड के ये गरीब हो लेकिन उसको उस प्रोडक्ट की कीमत तो उसी को चुकानी है तो इसका इम्पैक्ट तो ये भी सारे या चीज़ें को ज़रा गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा और अच्छी बातें करूँ तो देखिए मेक इन इंडिया का नारा देने के कारण इतनी सारी चीज़ें हो गई है इतने रोज़गार उपलब्ध हो गए हैं कोई माने ना माने लेकिन मुझे पता है कि जब इस मेक इन इंडिया के कारण ही हम इस क्षेत्र में आए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आए और आज जब हमने चालू किया था तो मेरे पास में हार्डली 10 या 15 वर्कर थे आज मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ खुद को और अच्छा लगता है मुझे प्राउड फील होता है कि आज मेरे पास में 125 के ऊपर वर्कर काम कर रहे हैं अगर मैं इसको एक फैमिली के अंदर में हम देखते हैं तो एक के पीछे 3 आदमी हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय अगर 3 करते हो तो कम से कम 350-400 आदमी का पेट
मतलब हम जरिया बने, हम तो क्या भरेंगे, correct, एक भगवान ने उन्हीं को दिया हुआ है, हर एक के दाने का बंदोबस्त उन्होंने किया हुआ है, हम तो केवल जरिया मानता हूँ मैं अपने आप को, लेकिन वो जरिया बनने का भी मौका हमें मिला, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। Absolutely. तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे कितने तो एंटरप्रेन्योर खड़े हो रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि और से और इसको उनको और दूसरी बात तो मोदी जी ने एक अच्छा किया है कि पहले हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन आज पिछले 2 साल के अंदर में मेक इन इंडिया के अंदर में बहुत सारे लोन ऋण जो भी लेना है वो बहुत आसानी से मिल रहे हैं सभी को। उसके लिए कोई और गारंटी नहीं देनी या कुछ नहीं, यहाँ तक का उन्होंने पूरा इतना मतलब बहुत अच्छा ये बनाया हुआ है बेस, कि कोई भी अगर जिसको आपके पास में अच्छी ये है आपकी अगर फाइल बनी हुई है या आपके पास में कोई आइडियाज़ है, उसको आप इमिडिएटली कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि बढ़िया ये मोदी जी ने काम किया हुआ है इसके ऊपर। तीसरा कि पहले जीएसटी को लेके सब लोग डरते थे। जीएसटी तो उसके अगेंस्ट तो कांग्रेस ने काफी, ऑपोजिशन पार्टीज ने काफी वो चलाया है, कैंपेन चलाया है, गब्बर सिंह टैक्स और ये वो। लेकिन मेरा अनुभव तो इसे ये कहता है कि सर इसके जैसा सरल और ये कोई है ही नहीं उपाय। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, आपको गवर्नमेंट के अंदर जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन पोर्टल्स उन्होंने खड़े किए हुए हैं। देखो कोई चीज़ को सही मायने में ये होने के लिए, इम्प्लीमेंट होने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो वैसे ही जब उन्होंने इसको 100% इसको ये लेके आए, कानून बनाया इसका जीएसटी का, तो आज उसके बाद में 3 साल के बाद हम देखते हैं, मेरे ख्याल से 2018 में लागू हो चुका था और आज हम 25 में हैं, तो 3 ही साल में इतने जो भी उसकी खामियां थी, देखो कोई चीज़ को काम करोगे तो उसके ऊपर धीरे धीरे उसके ऊपर आपको जो भी उसकी खामियां दिखती आती है, उभर के आती है, हाँ उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उभर के आती है, फिर उसके ऊपर काम होता है। तो आज के तारीख में मैंने देखा कि मेरा उस वक्त जब 2019 में हमने चालू किया था, तो मेरा खुद का जीएसटी लेना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल। ठीक है, तो 2 साल तक मेरे जीएसटी पेंडिंग पड़े हुए थे, लेकिन आज मेरा जीएसटीआर 3 भरने के बाद में हार्डली 10 से 15 दिन में मेरे अकाउंट में विदाउट एनीथिंग अपने आप आ रहा है। सो वो क्रेडिट गोज टू मोदी जी, जिन्होंने ये सारा जीएसटी इम्प्लीमेंट करवाया, जिसकी आज खामियां आ गई, और फिर हमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने भी बहुत अच्छा तरह काम किया हुआ है इसके ऊपर। राइट, आई थिंक आल्सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन। इतने सारे टैक्सेस होते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को वो सारे सिंप्लीफाई करके एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम है, तो इट हेल्प्स एवरीवन, राइट। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक करना चाहूँगा कि दूसरा, गए साल से मोदी जी ने और एक बढ़िया काम किया है कि सब एमएसएमई का सर्टिफिकेशन सबको दे दिया। तो एमएसएमई के अंदर में क्या उन्होंने कानून लेके आया कि जिसके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, जो भी छोटे से छोटा एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है, तो उसको 45 डेज में आपको पेमेंट करना है। पहले तो ये था कि मैं एमएसएमई में हूँ, मेरा अपना एक क्राइटेरिया है कि भाई हम एक उन्होंने जो भी XYZ का क्राइटेरिया रखा था कि भाई इसके ऊपर अब मेरा इतना बिजनेस है, तो मैं जब देता था तो मेरे पैसे आएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी। आज मैं उसको 45 डेज के अंदर में मुझे देना ही है पेमेंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आज एक छोटा सा बिजनेसमैन है ना, अपने पैसे के प्रति उसकी जो सोच थी कि यार मेरा पैसा तो मैं लगा तो रहा हूँ, तो ये रिटर्न आएगा कि नहीं, मेरा पेमेंट देगा कि नहीं सामने वाला, या मेरा पैसा डूबो जाए, तो वो जो अनसर्टनिटी थी या जो डर था वो आज खत्म हो चुका है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्टेप। फेथ इन गवर्नमेंट ऑल्सो इम्प्रूव्स, वो भी एक हेल्प करता है इंडस्ट्री को। I want to ask you, considering you've lived in Hong Kong, you've lived outside of India for so long, how do you see China versus India in terms of manufacturing? Okay, be very honest. China is light years ahead. Okay, very honest. Correct. Very light years ahead. It has its own But it didn't start out that way, because I've seen it. I've seen from where they've started, and definitely the government has helped. But it's not that it's only the government that's done everything. It's the whole impression out there that the Chinese government is giving money, throwing money at manufacturers, they're selling below cost. That's all nonsense. Chinese are very hardworking people, diligent people, risk takers. Again, you'll see a lot of success. I've also seen the graveyards. Many people have risen, many people have failed. But in China, there's less taboo against failure. Right. Here in India, failure, then people gossip, the family is upset. Some get very happy also at failure. Yeah. We hate it when our friends are successful, right? That whole thing is here.
But there it's not. There's a lot of community. Everybody will help each other, and the ecosystem grow. So manufacturing or business is not just about numbers and all that. It's about that collective The community feeling. Yeah. So that's there, and that's what's made them grow. Of course, the government has also supported, but that kind of thing has to be here. I feel that the government and the people have that intent. The execution is lacking. We need to accelerate on the execution, like how he was explaining about the BIS systems and all this type of stuff. And that mindset, we shouldn't have a defeatist mindset. Like, oh, we've already given up. Oh, China's so far ahead. China's so far ahead. If China did that when Japan was a leader or when South Korea was a leader, they wouldn't come to where they are right now. And this is the time for us to start taking those steps with the government support. But don't sit and just cry and complain and blame the government, because we've done it. Me being an NRI. He's had a great long manufacturing background, but we've done it. Anybody can, to be honest. But see, you've been quite vocal on social media about the India versus China specifically when it comes to manufacturing. I want to ask you, how do people react to your comments? Because internet is a very interesting place where anything you say can be held against you. Yeah. So I've been called anti-nationalist. But you might also be called Bhakt at some point. I got both. Honestly, it's on both. The Bhakti, also that, the whole thing. And I'm not here. Forget about competing with China. Those days have gone. Right. We're not here to compete with China. We're here to learn from them. Learn what we can from them, implement it here, and then start doing it our way. People talk about, we only do jugaad. I love jugaad. I think that's absolutely nothing wrong with jugaad. That's our way of working, and it's just a different way of working. Right. It's not right or wrong, right? And then when I say all these things, oh, you're CCP, you're anti-nationalist. Yeah, you don't have to reinvent the wheel all the time, right? But that's the thing, no. Why? That's exactly the thing, right? Why are small cheap toys, small fans, small little appliances being imported? We've gone to Mars. We've managed that, and we've done we've outbeen the world in that. Why can't we make a simple massager here? What's going on? Where are we missing? Where's this gap? Right? I just honestly I don't get it. I think at some point people they just want to build airplanes and not little appliances. I get criticized for that all the time. Oh, you're making a massager. Oh, what's the big deal? So what's that? Okay, but at least that's 100,000 less massagers coming into India in a year. I'm happy. That's less US dollars leaving. I'm happy. And 100 families are being fed, so that's exactly. So it's drop by drop. We fill the pill. But if we just sit and just cry drops, no point. correct. लेकिन इसमें एक तो ज़रूर है मैम कि आप देखिए कि जैसे कि प्रकाश जी ने कहा कि बहुत सारा हार्ड वर्किंग है ये, लेकिन जब से मोदी जी आए, मोदी जी का थर्ड टर्म है, तो आप देखेंगे जो गैप हमारा 50 साल का था वो रिड्यूस होकर 25 साल हो चुका है. यानी 25 साल तो उन्होंने हमें आगे लेके गए मोदी जी. वो भी 10 साल में. मतलब ये इनकी तीसरी टर्म है. पिछले 2 टर्म के अंदर में ही उन्होंने इतना गैप कम करवा दिया. तो सोचिए और 2-3 टर्म हम उनको देते तो शायद हम उनको भी क्रॉस करके आगे निकल जाए. उसमें भी पैंडेमिक आ गया. The global pandemic, despite the global pandemic. It's just a little diversion, but our story. So we started in 2000. He's good with numbers. 2019 we started. Just got our first, start with 10 people. We started to build up. COVID. Oh. Okay. We paid each and every worker, even we had zero income, but that was our thing always to Right. our responsibility. Again, COVID finished. Again, we had a nice boost, started going up, and in 2021 में क्या हुआ कि 2021 में फिर से कोविड आया, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा इंडस्ट्री के लिए थोड़ा लिबर्टी दी गई थी, मगर फिर भी जो प्रॉब्लम्स थे वो फेस करने पड़ रहे थे. और हम उसी में से थोड़ा सा बाहर निकल ही रहे थे कि बहुत सारा इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे कंटेनर्स का बहुत इशू चल रहा था. तो बहुत सारा माल हमारा रेडी पड़ा हुआ था और बहुत सारे ऑर्डर हाथ में, तो काफ़ी माल भी हमने भर के रखा था. और सबसे बड़ा हादसा हमारे साथ में हो गया कि हमारी फैक्ट्री को 17 अक्टूबर 2021 में फायर लग गई. Zero, not a single screw. और वहाँ पे एक छोटा स्क्रू भी हम बचा नहीं पाए. इतना हुआ, भगवान ने हमारे ऊपर मेहरबान थे कि वहाँ पे कैजुअलिटी नहीं हुई और हमारी टोटल फैक्ट्री फिनिश हो गई. हम लोग पूरा रोड पे आ गए. सो टोटल जो नुकसान था वो 11 करोड़ का हमारा नुकसान हो चुका था और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था. इवन दो उस वक्त
17 अक्टूबर के बाद में 2 नवंबर की दिवाली थी और 30 तारीख को 30 अक्टूबर को कुछ फंड आए हमारे पास में, जो हमने पहले माल भेजा था उसका, तो सम अराउंड मेरा देना निकल रहा था उस वक्त कुछ 3 करोड़ मार्केट में, और मेरे पास में कुछ 80 उस वक्त ड्यू जो हो गए थे वो खाली 80 लाख के आसपास में कुछ ड्यू थे, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में हमने उस दिन पेमेंट बांटी, कि जबकि पूरा सप्लायर लोग ने हमें फ़ोन किए कि सर अभी आप जिस हालात से गुजर रहे हो उसमें आपको ये होना मतलब फ़ंड चाहिए, आप हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनका बड़प्पन था। लेकिन मैंने और प्रकाश जी ने एक ठान लिया कि देखो दिवाली हमारी काली हो गई है, लेकिन ये मार्केट में पैसा अगर रोटेट नहीं हुआ तो सामने वाले जितने सप्लायर है तो उनके बच्चे भी कुछ आस लगा के बैठे रहेंगे, कुछ जिनका ड्यू होगा। मैं ये नहीं बोलता कि केवल मेरे पैसों से ही उनके बनने, लेकिन फिर भी वो पैसा जो रोटेशन में आया उससे सभी का भला होना था, सभी का, तो हमने वो रखा नहीं, हमारी सोच वो नहीं है कि नहीं यार ये रख के करेंगे क्या, जब है तो करना है तो आके करेंगे, और उसी का ये था कि हर एक सप्लायर हमारे पीछे खड़ा रहा उसके बाद में। The reputation grew from that. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो एथिक्स और प्रिंसिपल बहुत क्लियर होने चाहिए, Absolutely. ठीक है, तो वो आपको पे करके जाएंगे। That's the only thing. When we had our 10 workers, we were competing against giants, literally. The only thing was the reputation. We always paid on time till today, on time or before time. And after that, we got into capital, we got into own machinery. Now we're making the plastic in-house, the enclosures in-house, motor in-house. We're going to start making wires in-house. But the core start was from our reputation. Right. Okay, before we conclude, one last question, both of you, because आप दोनों स्कूल ड्रॉपआउट्स हैं। आपको टेल मी कि जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, एंड व्हाट डू यू से, आपको लगता है कि यू हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, की अगर पढ़ लेते तो शायद मेरी जर्नी, मेरा लर्निंग कर्व कम होता, या आपको लगता है कि ऑन द गो जो सीखा है वो मे बी दिस इज द बेटर वे ऑफ लर्निंग ऑन द जॉब थिंग्स, और इज इट अ मिक्स ऑफ बोथ? So for me, basically, I did want to go to university. I mean, I was all right, but financially, my dad couldn't do it at that time. Fine, I was upset at the time, but I joined business with just an open mind, and it just clicked. I guess maybe because being a Sindhi, it's been in the blood. You know, all the dinner time conversations about paisa, money, dhanda, right? So it's just kind of inbuilt. It become inculcated. And I think it's probably one of the best things that happened to me. I have no hate towards education. Yeah, no regrets. At the same time, no hate. My kids are going to go to university soon. They're going to different paths. But I've told my kids, if you're going to get into business, do it, but get your hands dirty. Business is all about getting your hands dirty, starting, going up, failing. Yeah, you know, like I have a box file of fails. Okay, I have no regrets about it because I've kept learning from it. My business life has been a graph, up, down, up, down, up, down. But that's just all. It just makes you more resilient, makes you more, open to trying new things. So I think it's a mix of both. If you're going to go into professional or what, yeah, definitely you have to, right? And career-wise, you do need to have that degree. Unfortunately, I think the education system today is completely broken. We're far behind of what the reality is. I'm not for it, but it is what it is. But guys, if you're getting into business, I think if you want to go for vocational training, join a factory, get on the shop floor, learn the things, then start trading, start a bit of trading, learn the thing, and then get into manufacturing. You cannot and do not just jump into manufacturing just saying, okay, I've got 1 crore, 2 crores, I'm going to start a plant. Do not do that. Your money will go. In a year, you'll be done. Right. But yeah, I mean, in our type of business, education is on the shop floor. आप बताइए। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपकी पढ़ाई लिखाई आपके कुछ बनने के लिए आपके आड़े आ जाती है। सो जैसे कि हमने जो उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उस उतार चढ़ाव के कारण ही आपका लाइफ का एक्सपीरियंस आपका गुरु बन जाता है, और वो आपको आगे बढ़ाते रहता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको कब आएगा? जब आप उसमें गिरोगे, जब आप दूर से ही सोचते हो कि पहाड़ ऊंचा है, उसको पहाड़ के बारे में बात करते हो या तालाब के बारे में। मेरा कहना है कि वो पहाड़ चढ़ोगे नहीं तो आपको पहाड़ की ऊंचाइयों का पता नहीं चलेगा। तालाब की गहराई का पता करना है तो उसमें आपको कूदी मारनी पड़ेगी, तैरना पड़ेगा। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रवाह के साथ, फ्लो के साथ तो हर कोई तैर लेता है, मगर उसके अगेंस्ट में जो तैर के निकला वो हमेशा सक्सेस होता है।
तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कि भाई मेरी पढ़ाई आ रही है, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, या ये नहीं है, या मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पढ़ने की, इसलिए मैं आज ये बना, वो सबसे वो बहुत मतलब अपने आप को आप गिरा रहे हो, मतलब वो एक कंप्लेंट मोड में चले जाते हो। मैं बोलता हूँ कि उसको आप इस तरह से क्यों नहीं लेते कि भाई ये मेरी मजबूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई से आपको ये नहीं पता चलेगा कि पाना पकड़ते कैसे है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो केवल और केवल थेरोटिकल के ऊपर काम कर रहा है, प्रैक्टिकल के ऊपर काम नहीं कर रहा। वो उसको पानी का पिक्चर, तो फॉर एग्जांपल पानी का पिक्चर देगा या स्पैनर का पिक्चर दे ही देगा, ये है उसको समझ में आ जाता है, लेकिन यूज़ कहाँ होता है उसको पता नहीं ना। तो वो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके बच्चे शायद मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में आना पसंद करेंगे। किसी को भी आज के तारीख में हाथ काला नहीं करना है, उनको वाइट कलर जॉब चाहिए, एसी में। और हाँ, और एक सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, जब इंटरव्यू के मेरे पास में आते बच्चे, तो वो देखते नहीं कि इस कंपनी की साइज़ क्या है या कैसे है। तो पहला उनका सवाल रहता है कि सर आपका इंटरव्यू बाद में कर दो आप उनका, लेकिन वो पहला, जैसे अब हम कर रहे हैं, तो पहला वो हमारा इंटरव्यू लेना चालू करते वो मेरे को सीधा पूछते कि सर यहाँ पे कितने घंटे का काम है। हाँ, तो उनको, और दूसरा, और 5 days a week है। अब मैन्युफैक्चरिंग वीक में, इसमें अगर आप 5 days a week करेंगे तो कहाँ से काम कर पाएंगे। तो वो उस तरह का कल्चर आ चुका है। किसी को भी मतलब मेहनत नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, सबको एसी वाले ये चाहिए और बस एक कंप्यूटर चाहिए सामने और उसी के ऊपर काम करना है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा हमारा एजुकेशनल को सिस्टम को, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि जो ग्राफ होता है अप एंड डाउन वाला, ठीक है, वो सक्सेस और आपको सक्सेस की ओर ही लेके जाएगा। क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में भी आप देखेंगे कि जब ईसीजी मशीन चलती है तो वो ऊपर नीचे होती है, जहाँ सीधी लाइन आ गई तो वहाँ आप ख़त्म है। तो ये खुद अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल और उदाहरण है कि मेडिकल लाइन भी ये बोलती है कि आप सीधे रहोगे तो ख़त्म है, तो उसके लिए आपको अप डाउन आना पड़ेगा। तो वो अप डाउन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और वो केवल आपको एजुकेशन से ही मिल सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और आपको आपका गुरु बनना पड़ेगा। In manufacturing, nothing beats practical. Theory is nothing, practical is everything. Believe it or not, we've had IIT people come to our factory, and trying to tell us what to do. We say we'll talk, we'll discuss, as we are now, and we'll take them around the factory. 3 or 4 hours later, they've come to us and told us we've learned more in this 3 hours than we learned at school, in university. That makes us happy, right? Because it's finally, until you don't touch the thing, you're not going to understand it. As simple as that. अभी इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल और एक ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, स्कूलिंग ड्रॉप आउट हुए, उसके बाद में बहुत सारा हेल्पर का काम किया, फिर कहीं ये की, तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मिली थी जहाँ पे मैं कमर्शियल हो गया, हेल्पर से कमर्शियल में आया, कमर्शियल से मैंने एक्साइज सीखी, एक्साइज से मैंने इनकम टैक्स सीखा, और मैंने बैलेंस शीट फाइल करना चालू कर दिया। जबकि मैं आई एम नॉट अ ग्रेजुएट, ना बीकॉम साइड से हूँ। तो अब मेरे को बताइए कि विदाउट एजुकेशन ये सब कैसे कर पाए। तो उसको एक डिज़ायर होती है कि ये कोई भी चीज़ आसान नहीं है, मगर वो मुश्किल भी नहीं है। तो यार ये मुझे क्यों नहीं आती, मेरा हमेशा का ये रहता था उनको आ रही है तो यार मेरे को उस चेयर पे जाना है। जब हमारे ज़माने में था तो कंप्यूटर जब आया था तो हमें बहुत दूर दूर से देख के सब लोग, जब कंप्यूटर बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि यार ये मेरे को क्यों नहीं आता। तो वो डिज़ायर अंदर है, तब मैं कंप्यूटर भी कर पाया। आज जब मैं उसके बाद में वहाँ से जब आज मैं टेक्नो कमर्शियल बन गया हूँ, मतलब टेक्निकली मैं करता हूँ तभी मेरे फैक्ट्री को मैं चला पा रहा हूँ। आज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, मैं कोई सिपेट से आया नहीं हूँ, मगर आप मुझे हर एक जितने भी रॉ मटेरियल्स उसके प्रॉपर्टीज़ आप मेरे को पूछ लीजिए या मेरे को मशीन सेट करने के लिए बता दीजिए, तो मैं हाथों हाथ कर देते कि जो कि सिपेट के बच्चे आके अगर मैं करने के बोलूँ तो उनको थ्योरेटिकली ही पता है, प्रैक्टिकली पता नहीं है कि इस प्रॉब्लम को क्या होता है। जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइन की है वो प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करते, वो घंटों लग जाएंगे लेकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन एक नॉन टेक्निकल बंदा जो मेरे पास में 10 साल से काम कर रहा है वो चुटकियों में उसे कर देगा। Exactly. मेरे पास में जो अपना स्टाफ भी है वो भी मेरे जैसा ही है पूरा। All. No graduates. We have no graduates in our factory.
तो उनको भी हमने उस लेवल पे लेके आ चुके हैं कि आज दे आर अर्निंग गुड सैलरी, हैंडसम सैलरी, बट उनको आज मज़ा आ जाता है कि हम भी इस लेवल के, हमारे हाथ के नीचे भी 4 आदमी काम कर रहे। Right. Exactly. मगर ये क्या है कि अगर वो भी मतलब हम भी अगर ये लेकर के चलते कि नहीं यार सबको एजुकेटेड लोगों को ही रखना है, तो मुझे पता है कि मेरी फैक्ट्री हम जो कम समय में इतना ऊपर आ चुके हैं उतना नहीं आ पाते। Another drawback is people who have the degrees, who have graduated, they do come with a certain ego, and that doesn't work in manufacturing. You have to be open and to learn, like how all our boys have done. They just come with that passion, and from zero they've learned. Now they're handling the whole show. We're sitting here doing this podcast. The factory's running. As long as the less messages we get, the more I know we're successful. Excellent. On that note, thank you so much for joining us. बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग था ये कन्वर्सेशन, एंड आई होप you reach newer heights and we see you again on the show and where you talk more about your experiences. Definitely. More positive, जो आपके drawbacks आपने बताए वो तब तक resolve हो जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ. Thank you so much for joining us. Thank you very much. Thank you very much. जय हिंद. और हम इस साथ में मोदी जी को बहुत ही आभारी रहूँगा कि उन्होंने जो इंडस्ट्री के लिए जो काम कर रहे हैं वो इससे और अच्छा उनसे होए, और वो सदैव वो भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र दे ताकि हमारा देश और प्रगतिशील पथ पर चले, और ये उनके बगैर मुमकिन ही नहीं है. इसके लिए एक राइट लीडर जो आज हमें मिला है, तो हमारा इंडिया का जो ये है वो बहुत ही सही पाथ पे हम चल रहे हैं, और हमारी वर्ल्ड के अंदर में जल्दी हम जो आज थर्ड इकोनॉमी है वो जल्दी हम फर्स्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएंगे. जी मोदी है तो मुमकिन है. हाँ जी. All right then, thank you so much. Thank you. Thanks a lot.